Good morning, student. Let's continue our chapter Tracing Changes Through 1,000 Years. History first chapter Tracing Changes Through 1,000 Years. We have read about some Arab geographer Al-Idris, French cartographer, new and old terminologies, and about foreign, city dweller, forest dweller, historians and their sources, manuscripts, archives, new social and political groups. In this, we have read about Rajput, name derived from Rajaputra, habitat Jati and Jati Panchayat, and other groups of people such as Maratha, Sheikh Jat, Ohms and Kayas also get the opportunities in the political department. We have read about that. Let's start our new topic, that is region and empire. Large states like those of Cholas chapter 2, Tughlaqs chapter 3 or Mughals chapter 4 encompassed many regions. They acquired many regions. Cholas acquired many regions, Tughlaqs or Mughals acquired many regions of our country. A Sanskrit Prashishti. See chapter 2 for an example of a Prashishti. Chapter 2 में आप इसका example Prashishti का देखेंगे. Praising the Delhi Sultan, they praised the Delhi Sultan Ghayasuddin Balban. Ghayasuddin Balban 1266 to 1287. He explained that in Prashishti explained that he was the ruler of a vast empire that stretched Bengal in East God, West Afghanistan in Ghazni and full South India Dravid. उसने अपना पूरा कब्जा किया था ईस्ट में बंगाल में गौड़ तक, वेस्ट में अफगानिस्तान गजनी तक और साउथ इंडिया द्रविड़ तक उसका पूरा कब्जा था. और पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन लेट गौड़, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his army. जो पीपल थे डिफरेंट रीजन्स के, गौड़ के, आंध्र के, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली जब भी इनकी गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने जब भी ये आते थे, ये वहाँ से तुरंत फ्लेड हो जाते थे, चले जाते थे. उनकी आर्मी के सामने ये कभी भी रह नहीं पाते थे. Historians regard these as aggregated claims of consequence. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. That जो historians regard these as aggregated claims of consequence. जो historians हैं इसको बहुत ही you can say victories को बहुत अच्छे से explain कर रहे हैं. That is they are explaining aggregatory claims of consequence. ये जो victories हो रही थी हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में, इनको बहुत ही अच्छे से they can explain it. That at the same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. और साथ ही में हमारे हिस्टोरियन ये भी समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो रूलर्स थे वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट को क्यों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में अपना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं. आज स्टार्टिंग में हिस्टोरियन एक्सप्लेनिंग दैट दे आर डूइंग अ गुड जॉब, लाइक दे आर controlling our continents, but
they are explaining how Ghiyasuddin Balban controlling our full country, and after that they are asking, they are trying to understanding why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. Why rulers are claiming, बार बार रूलर्स क्यों क्लेम कर रहे हैं, क्यों हमारे सब कॉन्टिनेंट्स को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं, वाई दे आर डूइंग सो. इन पेज नंबर 9 there is a map prominences of Delhi Sultanate during Muhammad Tughlaq's reign according to the Egyptian source. इजिप्टियन सोर्स ने ये पूरा मैप दिखाया है जिसमें मोहम्मद तुगलक के रीजन्स है जिस पे उन्होंने कब्जा किया था. मसालिक एंड यू से मसालिक अल अफसर फी और ममालिक अल अमसर ऑफ अफसर तुगलक, मोहम्मद तुगलक अफसर ऑफ शिहाबुद्दीन उमरी. शिहाबुद्दीन उमरी ने कुछ सोर्सेस थे उनके, मसालिक अल अफसर फी एंड ममालिक अल अमसर, इन दो में उन्होंने मोहम्मद तुगलक के रीजन्स के बारे में डिस्क्राइब किया. और ये इजिप्टियन सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद तुगलक ने कितना अपना राज्य, कितना कंट्रोल किया था सब कॉन्टिनेंट को. एंड लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, लैंग्वेज एंड रीजन. लैंग्वेज एंड रीजन. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was, in 1380 अमीर खुसरो ने something noted किया था. A poet, Amir Khusro is a poet. He noted something. He noted that there was a different language in every region of this land. He noted that a different language in every region of this land. First point. Second, Sindhi. The language is Sindhi, Lohari, Kashmiri. Sindhi, Lohari, Kashmiri, Dwar Samundri in southern Karnataka land. Telangani in Andhra Pradesh, Gujri, Gujarat in Gujarat, and Mahabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Avdi in eastern Uttar Pradesh, and Hindwi in Delhi in the area around Delhi. The poet Amir Khusro noted that there was a different languages in every area, in every region of this land, and the languages is Sindhi, Lohari, Kashmiri, Dwar Samundri in southern Karnataka, Telangani in Andhra Pradesh, Gauri in Gujarat, Mahabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, and Avdi in eastern Uttar Pradesh, and Hindwi in the area around Delhi, Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages there was Sanskrit, which did not belong to any region. Amir Khusro describes that a different languages in every region of this land, and in contrast of these languages, ये जो कॉन्ट्रास्ट थे डिफरेंट लैंग्वेजेस के, उनमें एक लैंग्वेज थी, देयर वाज वन लैंग्वेज संस्कृत, which do not belong to any region. Sanskrit did not belong to any region. Sanskrit did not belong to any region, and it was an old language.
Sanskrit was an old language and common people do not know it. Common people do not know it. They uses their area, their region language, and it is an old language. Common people do not know it. Only the Brahmins do. इन सब लैंग्वेजेस को जो पोएट अमीर खुसरो ने जो नोट किया था, जो डिफरेंट रीजन्स में इन आवर लैंड डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती थी, एंड इन सब लैंग्वेजेस के अलावा एक ऐसी लैंग्वेज थी संस्कृत जो किसी भी रीजन में यूज नहीं होती थी. दैट एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट. कॉमन पीपल को संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता था. ओनली ब्राह्मण नो इट. सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज, सिर्फ ब्राह्मण नोट करते थे संस्कृत लैंग्वेज को. Then make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. Make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline names that are similar and circle those that are different. Make a list. First, make a list of the languages mentioned by Amir Khusro. Mentioned by Amir Khusro. First list आपको बनानी है जो mention अमीर खुसरो ने किया था, like लोहरी कश्मीरी, द्वार समुद्री in southern Karnataka, Sindhi, Telangani in Andhra Pradesh, Gujri in Gujarat, and Mahabari in Tamil Nadu, and Gauri in Bengal of the eastern part of the Uttar Pradesh, and around the Delhi is Hindwar. Around Delhi is Hindwi. And make a list of first make a list of the Amir Khusro, and second prepare a list the names of languages spoken today in the region. Spoken today in the region. If the language was same, if the language is same, please. If the language is same, underline that language. If the language is different, circle that. And did you notice that the names by which languages are known have changed over time? क्या आपने नोटिस किया है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेजेस में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं? डिड यू नोटिस? लेट्स स्टार्ट. जैसे आप बचपन में ऐसे लाइक दैट यू टॉक मम्मा मम्मा, बट टुडे यू कॉल yes, no, mummy, papa, many reasons like that. Let's continue our topic. By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions. सबके एरिया 700 तक सबके खुद के जितने भी रीजन्स के एरिया थे, एक डिफाइन कर दिया गया था उनके एरियाज को, एंड इन दैट टाइम सबकी ओन लैंग्वेजेस और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन हो गए थे. दे आर यूजिंग देयर ओन लैंग्वेजेस, सेलिब्रेटिंग देयर कल्चरल, and you will learn more about these things. You will learn more about the cultural, languages, geographical dimensions in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. जो स्पेसिफिक एरियाज थे वो एक रूलिंग डायनेस्टीज के अंदर आते थे. रूलिंग डायनेस्टीज के अंदर पे ये जो स्पेसिफिक एरियाज से एसोसिएटेड होते थे. देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट, बट some areas belong to Ghiyasuddin Balban, some areas belong to Muhammad Tughlaq. You can understand by this. Then there is always a conflict between them. But conflict between these states. Occasionally dynasties like Cholas, Khaljis,
Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Occasionally dynasties, Chol, Khaljis, Tughlaqs and Mughals, इन्होंने अपना साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा पैन रीजनल स्पैनिंग मीन्स डाइवर्स रीजन में अपनी डायनेस्टीज को, अपने एम्पायर को फैला के रखा था. मतलब बहुत बड़ी डाइवर्स रीजन्स में यू कैन से. बट कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 in chapter 3 and 4, what was the duration of rule of the Khalji and Mughal dynasty? In chapter 3 and in chapter 4 you will read that what were the durations of these dynasties in our land. When the Mughal Empire declined in the 18th century, when the Mughal Empire declined in the 18th century में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था. It led to the re-emergence of regional states. It led to re-emergence of regional states. Like जब मुगल एम्पायर उस स्टेट पे राज कर रहा था, जिन स्टेट पे, जब वो डिक्लाइन होके वहाँ से मुगल एम्पायर का एंड होने लग गया, देन जो एरियाज थे, जो री इमर्जेंस उन एरियाज में जो रीजनल स्टेट थे उनमें री इमर्जेंस स्टार्ट हो गया. वो दोबारा अपने आप को डेवलप करने लग गए क्योंकि मुगल एम्पायर के हटने के बाद से उस एरिया ने खुद अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड डेवलप. But years of imperial कुछ टाइम के बाद pan-regional rule had altered the character of these regions. लेकिन कुछ सालों के बाद जो pan-regional थे, जो उन एरियाज का शासन जब मुगल एम्पायर चल गए थे, तो जो मुगल एम्पायर थे, when the Mughal Emperor declined in the 18th century, मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, दैट जो रीजनल एरियाज थे जिस पे मुगल एम्पायर ने राज किया था, दैट रीजनल एरियाज वो उन्होंने अपने आप को डेवलप करना, रीइमर्जेंस स्टार्ट कर दिया था. एंड यू विल रीड इट इन चैप्टर 10. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल, जब तक उनका राज था, देन पेन रीजनल रूल हैड एल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ दीज रीजन. जब तक उनका राज था, उन क्षेत्रों में बहुत ही धीरे धीरे से चेंजेस आ रहे थे. मतलब उनके राज के कारण जो वो एरियाज थे, उनके कैरेक्टर्स में बहुत चेंजेस उन्होंने उस एरियाज में करके रखा था. दैट मुगल एम्पायर्स across most of the subcontinent, the regions were left with the legacy of the big and small states that had ruled over them. Small state, big और small states में किसी न किसी रूलर ने ऑलवेज उस पर वो राज्य करते थे. कोई ना कोई रूलर हमेशा उन पर राज करता रहता था. And one thing कि you have read that कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा. that अगर मुगल एम्पायर थे तो उनके साथ जब उनका बेटा होगा या उनके जो रिलेटिव्स होंगे, उसके बाद वो उन पे राज्य करेंगे. बट this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, entire cultures and languages. Through the thousands years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation.
in this paragraph, across most of the subcontinent, the regions were left with the legacy of the big and small states that had ruled over them. जो small areas थे उन पे कुछ big states, कुछ big और small states का राज्य लगातार चलता रहा. उन्होंने ruled किया उन areas पे. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions. ये उन पे उन्होंने बड़े राज्य ने या बड़े स्टेट्स ने या स्मॉल स्टेट्स ने उस एरिया पे हमेशा राज वो करते चले आए. ठीक. और इनसे उन दो इससे वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन एरिया टू अनदर एरिया, द कल्चर्स आर डिफरेंट. कल्चर्स उनमें डिफरेंट थे. जो एरियाज के डेवलपमेंट थे दैट आर ऑल्सो डिफरेंट. वो उनके जो कल्चर्स थे दैट आर डिफरेंट एंड द एरियाज ऑल्सो शेयर. जो ट्रेडिशंस करते थे कभी कभी वो सिमिलर ट्रेडिशंस थे एंड समटाइम्स दे आर डिफरेंट ट्रेडिशन. एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन क्यों होते थे दैट इन द रिलीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऐसी या गवर्नेंस ऐसी थी. गवर्नमेंट ये रूल्स बनाती थी. गवर्नेंस था वहाँ का. द मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी, तो मैनेजमेंट थी उस इकॉनमी की. या एलाइड कल्चर्स थे. जो एलाइड कल्चर्स मतलब रिच कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस थी वहाँ की. एंड हमें इन सब चीज़ों के कारण ही हमारे एरियाज़ में डेवलपमेंट या हमारे रीजन्स में डेवलपमेंट्स होते थे. बट थ्रू द थाउजेंड्स ईयर्स में 700 to 1750 के जो बिटवीन्स में द कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. और जो कैरेक्टर फर्स्ट हमने जो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे रीजन्स के थे, जो एरियाज़ के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत डिफरेंट थे हर एरियाज़ के. एंड बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द डिफरेंट पर्सनस, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स. और अभी हमने पढ़ा था जो डिफरेंट स्टेट्स के थे, अलग अलग रीजन्स के, उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट कल्चर्स थी. बिकॉज ऑफ दिस इनमें काफ़ी चेंजेस थे. बट हमारी इकॉनमी हमेशा रिच कल्चर से थी. रिलीज गवर्नेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी इकॉनमी में चेंजेस लाते थे क्योंकि जो मैनेजमेंट था बहुत अच्छे से हमारी इकॉनमी को डेवलप करती थी. इन दैट टाइम थ्रू द थाउजेंड्स ईयर्स में जो बिटवीन 700 to 1750 के बीच में जो थाउजेंड्स ईयर्स थे, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. जो कैरेक्टर्स थे डिफरेंट रीजन्स के, जो कैरेक्टर्स थे जो डिफरेंट रीजन्स के, वो अब अलग अलग रीजन्स में होकर डेवलप नहीं कर पा रहे थे. वो ग्रो आइसोलेट होकर डेवलप नहीं कर पा रहे थे. जस्ट अगर हम देखें कि इलाहाबाद को डिफरेंट कर दिया जाए, कौशाम्बी को डिफरेंट कर दिया जाए, तो इनमें डेवलपमेंट जो होगी वो डिफरेंट मीन्स कि जो इनके कल्चर्स होंगे डिफरेंट होंगे. समथिंग उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट की जा रही है हर एरियाज़ में की जा रही है. बट अभी भी आप कौशाम्बी एरियाज़ या प्रयागराज के एरियाज़ में देखेंगे तो डेवलपमेंट कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, कुछ एरियाज़ में बहुत ही कम डेवलपमेंट हुई है. अगर हम चाहें कि सिर्फ कुछ ही एरियाज़ को डेवलप कर दे और कुछ एरियाज़ को ना करें तो दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज़ अ ग्रो इन आइसोलेशन. इट मीन्स दैट ग्रो इन आइसोलेशन मीन्स कि हमने सिर्फ सिविल लाइन्स को डेवलप करने का सोचा है और जो बाकी एरियाज उनको डेवलप करने के लिए नहीं सोचा है. तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि प्रयागराज पूरी तरह से डेवलप्ड है? नो. इसीलिए कोई भी एरियाज़ को अगर आप किसी भी रीजन्स को डेवलप करते हो तो उसके हर एरियाज़ को आपको डेवलप करना है. दैट टाइम ऑल्सो उसमें कहा गया जो 1000 ईयर्स थे 700 to 750 जो डिफरेंट रीजन्स थे वो आप अकेले ग्रो नहीं कर पा रहे थे. उन्हें ग्रो करने के लिए सबको यूनिटी में आने की ज़रूरत थी. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. हालांकि उनके जो just these regions felt the
larger pan-regional forces. Means जो इनके कैरेक्टर्स थे, जो इनके कल्चर्स थे, इन्होंने अपना एक अलग ही अपने कल्चर्स को डिफाइन किया था. एंड इन पर जो इन्होंने कहा कि अब ये ग्रो आइसोलेशन नहीं कर पा रहे थे, तो इन पे दूसरे जो बिगर स्टेट था उनका बहुत ही इफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था. जस्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. अगर आप डेवलपमेंट की बात देखें तो जो हमारे एरियाज़ के हेड या आपकी जो कॉलोनीज़ के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, दैट वो अपनी कॉलोनीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, तो हमारे एरियाज़ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. और इसी के कारण जो जब तक वो हटेंगे नहीं, कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, तब तक हम अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे. और दैट टाइम ऑल्सो जब मुग़ल एम्पायर हम पर थी, तो दैट टाइम उन्होंने कुछ ही एरियाज़ में अपने कल्चरों को डिफ़ाइन किया था, और जो डिफरेंट एरियाज़ थे उनमें उनके कल्चर्स बिल्कुल भी डिफाइन नहीं थे. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. वी हैव रेड रीजन एंड एम्पायर पे ऑलवेज कुछ पार्ट्स का, कुछ ट्रेडिशंस का इफेक्ट था, द रिलीज ऑफ गवर्नेंस का इफेक्ट था, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी का, रिच कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट था. अगर ये एरियाज़ अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट या अलग अलग भी हो जाते थे, तो इनके जो कल्चर्स थे वो अलग, इनके जो कल्चर्स थे तब भी उनमें वो कल्चर्स डेवलप होते रहते थे. जस्ट old and new religion. The next topic is old and new religions. The 1,000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. जो हम thousands of years की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं, इसमें हमने एक्सप्लोर किया, विटनेस किया है डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन. इस हिस्ट्रीज में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुई. पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव. पर्सन की, जो पीपल्स की थी, दैट टाइम बिलीव वो करते थे दैट टाइम पीपल्स का बिलीव था कि वो बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल. वो समटाइम्स तो बहुत डीपली पर्सनली उन रिलीजन्स पे बिलीव करते थे, एंड समटाइम वो बिल्कुल कलेक्टिवली उन पे बिलीव करते थे. दैट अगर हम पर्सनली किसी भगवान पे बिलीव कर रहे हैं, समटाइम हम उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं, और समटाइम्स हम जब अपनी बातें लोगों को बताते हैं तो एक ग्रुप में होकर हम उन पे फिर भगवान पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं. कलेक्टिव बिलीव मीन्स कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी. कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी. कलेक्टिव बिलीव था जो सुपर नेचुरल एजेंसी. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. जो collective beliefs थे वो एक supernatural थी. supernatural था जो हम अपने किसी धर्म पे ट्रस्ट करते थे या अपने रिलीजन पे ट्रस्ट करते थे, और ये जो ट्रस्ट था वो जो क्लोजली कनेक्टेड था ट्रस्ट सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे था. जो कलेक्टिवली ट्रस्ट था, जो बिलीफ था रीजनल पे, जो हमारा बिलीफ था वो सुपर नेचुरल बिलीफ था, और वो बिलीफ जो रिलीजन पे था, हम सबका बिलीफ रिलीजन पे था, एंड वॉज ऑफन, और दैट क्लोजली कनेक्टेड था. जब हम किसी पे बिलीव करते हैं तो हम एक क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कि हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाए. दैट एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप अल्टर्ड, so too did their belief, and
can say ये first they believe in their religion and connected with this religion to social and economic development, local communities या economic development. As the social world changing, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग सोशल वर्ड्स में चेंजेस आते रह गए, दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो इन ग्रुप्स के जो बिलीव थे रिलीजन्स पे उनमें भी काफ़ी चेंजेस आने लग गए, उनमें भी काफ़ी चेंजेस होने लग गए थे. दैट it was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. This time it was during इसी पीरियड में important change occur हुआ था what we call Hindus today, जिसे हम आज हिंदुइज्म या हिंदू धर्म कहते हैं. दैट पीरियड, उसी ड्यूरिंग पीरियड के टाइम जो कल्चर चेंजेस हो रहे थे, लोगों का जो बिलीव था पर्सनली एंड कलेक्टिवली जो बिलीव रिलीजन्स पे था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में जो कनेक्शन था, दैट सोशल वर्ल्ड के चेंज होने के कारण जो ग्रुप्स ऑफ बिलीव थे, जो ग्रुप्स अल्टर्ड कर रहे थे, जो बिलीव था उनमें काफ़ी चेंजेस था. और ड्यूरिंग दिस चेंजेस एक हिंदुइज्म आकर हुआ. And these included the worship of new deities. और इस हिंदू धर्म के आने के बाद सब लोगों ने अपने वर्शिप स्टार्ट कर दिए, न्यू डाइटीज, नए नए भगवानों की पूजा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स भी स्टार्ट हो गए बाय रॉयल्टी, राजाओं ने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल भी स्टार्ट करवा दिए. द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण की इम्पोर्टेंस बहुत दैट टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट हो गई. द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, ब्राह्मण प्रीस्ट मीन्स पुरोहित, एज डोमिनेंट, समाज में जितने भी पुरोहित थे उन्होंने मतलब डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, सबकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई और हिंदुइज्म बिल्कुल डेवलप्ड होने लग गया हमारी सोसाइटी में. मीन्स इन दैट पीरियड यू कैन से जब ये चेंजेस आए रिलीजन्स में तो हिंदुइज्म का जन्म हुआ, बर्थ हुआ या अकर्ड हुआ. इस चेंजेस के कारण हिंदुइज्म अकर्ड हुआ और हिंदुइज्म के अकर्ड के बाद लोगों ने नंबर ऑफ डाइटीज की वर्शिप स्टार्ट कर दी थी, देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट कर दी. और उन्होंने जो रॉयल्टीज थे, जो राजा थे, उन्होंने दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, मतलब द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल भी स्टार्ट हो गए. एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण की इम्पोर्टेंस, प्रीस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में बढ़ गई. एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ जो पीपल थे, सोसाइटीज थे, वो ब्राह्मण और पुरोहित को बुला बुला के पूजा करवाने लग गए, पूजा करने लग गए. एंड देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी. आज जो संस्कृत की नॉलेज थी उसके कारण जो ब्राह्मण में संस्कृत की नॉलेज थी, ब्राह्मणों को बहुत ही सेल्फ रेस्पेक्ट सोसाइटी में मिलने लगा था. क्योंकि वी हैव रेड की संस्कृत जो थी वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही आती थी और किसी सोसाइटी या रिलीजन की भाषा या किसी रीजन की भाषा नहीं थी, किसी भी एरिया की भाषा संस्कृत नहीं थी या किसी सिंगल पर्सन की भी लैंग्वेज नहीं थी. Their dominant position was consolidated by the support of their patron, new rulers searching for prestige. Patron means an influential, wealthy individual who supports another person, an artist, a craft person, a learned man or a noble. Patron means एक ऐसा इन्फ्लुएंस, मतलब जो एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल पर्सन होता था जो सपोर्ट करता था अनदर पर्सन को, जो अनदर पर्सन लाइक आर्टिस्ट हो, क्राफ्ट पर्सन हो या
या लर्न पर्सन हो या नोबल पर्सन, वो सबको सपोर्ट करता था। दैट एंड the dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। अब deities, देवी देवताओं की लगातार पूजा होने लग गई थी और जो देवी देवताओं की लगातार पूजा होने लग गई थी, डोमिनेंट पोजीशन, जो रूलर्स थे उन्हें एक प्रेस्टीज, पैट्रन्स के होने के कारण, ब्राह्मण के होने के कारण उनको भी अपने आप को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और उन्होंने लोगों पर अपना राज्य स्टार्ट कर दिया था। उनको अपने अंडर में वर्क करवाना, उनको अपने एरियाज में रखना, क्लेम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था या कंट्रोल करना। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द पर्सन with the help of patrons। One